Good morning, all of you. Today discuss arithmetic progression, exercise 5.3, question number 4. How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to a sum of 636? So now, sequence of AP A 9, 17, 25. The first term A is equal to 9. Common difference and CD. CD is equal to 17 minus 9 is equal to 8. Common difference and D is equal to 8. How many terms to be taken to give sum of 636? अब मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म भी n यानी Sn is equal to 636. Sn is equal to 636. Sum is given, so formula of nth term for sum Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. In this formula, Sn is equal to 636. N will be fine. A is equal to 9 and D is equal to 8. Sn, now put Sn is equal to 636. N by 2, 2 into A 9 plus n minus 1, common difference 8. In this equation, find the value of n. N means number of term. 2 into 636 n 2 को ले आए लेफ्ट साइड में 9 into 280 plus 8n minus 8. 6 2 are 12. 1 3 into 6. 3 into 2 6 or 1 7. 12 is equal to 18 minus 8 10. 10 into n 10n plus 8n square. Now arrange in quadratic form. 8n square plus 10n minus 1272 is equal to 0. Now taken common 2 in all terms. So 4n square plus 5n minus 636 is equal to 0, or 4n square plus 5n minus 636 is equal to 0. Now there are three methods for solving this quadratic equation. First, quadratic formula. Second, middle term splitting. Third, by completing a square. हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म से. 6 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 636 और 4 का 2 into 2. 4 का हम लिख दिए 2 into 2 और 636 को 2 से लगाए 3 1 8. फिर 2 से 1 5 to the 10 1 9. 3 से 5 3. अब 53 किसी से डिविजिबल होगा नहीं होगा, जिसको 53 छोड़, है ना. यहाँ 6 3 to the 6
12 into 4 48 48 इसका प्रोडक्ट आ गया 48 और यहाँ आपका अकेला रह गया 53 लाना है +5n तो +53 और -48 नाउ मिडिल टर्म splitting 4n square plus 53n minus 48n minus 636 is equal to 0. Now n कॉमन लिए 4n plus 53 और इसमें माइनस अब ब्रैकेट के अंदर 4n plus 53 लाना है तो -12 ले लो कॉमन तो 4n plus 53 is equal to 0. Two factors are first factor 4n plus 53 और अदर फैक्टर n minus 12 is equal to 0. एक 4n plus 53 is equal to 0. n is equal to -53/4 और सेकेंड n minus 12 is equal to 0. n is equal to 12. आपसे पूछ रहा था कि हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी तो इट इज नॉट पॉसिबल टर्म इन नेगेटिव it is not possible. So n is equal to 12. So the number of term is 12, whose sum is 636. The total number of term is 12, whose sum is 636. It is your answer. बोलिए इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? अब ठीक है, यहाँ पर हम मिडिल टर्म से फैक्टराइज किए, 2 फैक्टर आया, फर्स्ट फैक्टर 4n plus 53, अदर फैक्टर n minus 12, यहाँ से n लिया -12 and this is equal to 0 case 1, this is equal to and n minus 12 is equal to 0. Two roots are -53/4, other roots is 12. तो ये फ्रैक्शन में रहेगा इसलिए ये आपका नंबर ऑफ टर्म नहीं होगा. So n is equal to 12. The total number of 12 is 12, which sum is 636. Okay. So नोट कर लिया. मिटावे इसको.
Question number 5. Question number 5 is the first term of an AP. The first term of an AP is 5 and the last term is 45. First term means A is equal to 5 and last term is L या AN या TN is equal to 45 and the sum is 400. सभी का सम कितना है? 400. Find the number of term and common difference. So first of all, find number of term and a value of n. So in this question, first term A is equal to 5. A is equal to 5. Given A is equal to 5. Last term and L is equal to 45. And given sum is 400 and Sn is equal to 400. So find the number of term. Find first में number of term यानी m फाइंड करना है और सेकेंड फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो इन दिस क्वेश्चन गिवन सम इज द n term is 400, so Sn is equal to n by 2 into A plus L का हम यूज करें. L is given, last term is given. L is equal to 45. Sum of n term 400 is equal to n by 2 A 5 plus L 45. अब इस इक्वेशन में केवल ओनली n बचा हुआ है, जो n हम वन वेरिएबल का इक्वेशन आ गया. हम n यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं. n मीन्स नंबर ऑफ टर्म कितना होगा. नंबर ऑफ टर्म क्या आएगा? तो बाय क्रॉस 2 को ले आए लेफ्ट साइड. तो 400 इंटू 2 is equal to n into 45 plus 5 50 और n is equal to 400 into 2 divided by 50. इससे 8 बार में कैंसिल. कितना आया? आपका 16 करेक्ट आया. n is equal to 16. फर्स्ट हमको यही फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म. फर्स्ट हमको फाइंड करना था नंबर ऑफ टर्म. नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 16 यानी n इज इक्वल टू 16 आया. यानी इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म 16 है. अब नाउ सेकेंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस इक्वेशन. तो आप कॉमन डिफरेंस के लिए हम यहाँ पर दो ही फॉर्मूला जानते हैं. सम ऑफ n टर्म, तो n मालूम है, और nth टर्म. तो हम nth टर्म का यूज करते हैं. यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. इन दिस इक्वेशन an यानी आपको an क्या है? लास्ट टर्म. लास्ट टर्म का वैल्यू क्या है? 45. a फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5 और n नंबर ऑफ टर्म इज 16. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ d.
तो पुट an is equal to 45 is equal to a5 plus n minus n means 16. 16 minus 1 common difference d और 45 is equal to 5 plus 16 into d 16d minus d 16d minus d यानी 15d यहाँ डायरेक्ट में लिख सकते थे 15d 45 minus 5 is equal to 15d तो d is equal to 40 divided by 15 5 से 3 5 से 8 d is equal to 8 by 3 आपका यही डी आया कॉमन डिफरेंस हाँ पॉइंट में भी लिख सकते हो फ्रैक्शन में भी इसको छोड़ सकते हो फ्रैक्शन में कॉमन डिफरेंस यानी डी इक्वल टू 8/3 इसका रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप ही पढ़िए तो। हाँ निकाल फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस अगर 9 है तो हाउ मेनी टर्म आर देयर टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड कीजिए एंड व्हाट इज देयर सभी टर्म का सम क्या है। केवल दिया हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इट्स 17 एंड 350 यानी a इज इक्वल टू 17 लास्ट टर्म an या tn या आप L भी लिख सकते हो। तो L इज इक्वल टू 350 रिस्पेक्टिवली। कॉमन डिफरेंस 9 यानी 3 टर्म आपका दिया हुआ है। 3 टर्म इसमें आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल टू 17 लास्ट टर्म n इज इक्वल टू 350 एंड कॉमन डिफरेंस यानी फाइंड हाउ मेनी टर्म आर देयर यानी नंबर ऑफ टर्म फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म। फर्स्ट में नंबर ऑफ टर्म्स मींस n फाइंड करना है और सेकेंड फाइंड करना है व्हाट इज देयर सम यानी Sn। आप Sn फाइंड कीजिए इसका Sn क्या होगा है ना। तो यहाँ पर लास्ट टर्म यानी L इज इक्वल टू 350 दिया हुआ है यानी an इज इक्वल टू 350 an
यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350। जो दिया हुआ है हम उसी का यूज करेंगे। आपको nth टर्म, l मीन्स क्या, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होता है, an इज गिवन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब फर्स्ट टर्म a इज 17, n हमको फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 9 इक्वल टू 350। सभी वैल्यू पुट कर दिए, केवल d आपको n रह गया इस इक्वेशन में, n फाइंड कर लेंगे। और 17 प्लस 9n माइनस 9 इक्वल टू 350। तो 17 माइनस 9 8 कितना आया, देख लेते हैं। 350 और 17 माइनस 9 8, तो माइनस 8 आएगा राइट साइड में। यानी 9n इक्वल टू 10 माइनस 8 2, यहाँ 4 और 3, तो n इक्वल टू 342 बाई 9। 7 n इक्वल टू 38। आपका भी 38 आया है। हाँ, n क्या निकला, नंबर ऑफ टर्म। तो द नंबर ऑफ टर्म इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 38। एक आंसर हम फाइंड कर लिए, एक आंसर फाइंड हो गया। अब सेकेंड में, अब आपको 38 टर्म का सम फाइंड करना है। Find the sum of 38 term whose first term a is equal to 17 and common difference is equal to 9। हम यहीं पर सम का फॉर्मूला लिखते हैं और सम निकाल देते हैं हाफ साइड में। यानी ऐसे आपके पास यहाँ दोनों फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। एक एसन होता है n/2 इंटू a प्लस एल। तो चूंकि l हमको मालूम है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। यहाँ पर हमको s कितने टर्म का सम फाइंड करना है, 38 टर्म का। यानी S38 इक्वल टू 38/2 a इक्वल टू 17 प्लस l 350। यहाँ पर हमको इसी फॉर्मूला का यूज कर लिए। अब हमको सम ऑफ 38 टर्म का मालूम हो जाएगा। 38/2 इंटू दोनों का सम करो, 7, 5 प्लस 1 6 और 3 2 से कैंसिल, यानी आपको बस गया 367 मल्टीप्लाई 19। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा जल्दी बताओ, इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 6972। यानी सम ऑफ 38 टर्म इज 6972। आप देखो ये सब क्वेश्चन में दो पार्ट आ रहा है। एक आपको नंबर ऑफ टर्म भी निकालने दे दिया, दूसरा पार्ट में उसका सम भी निकालिए। तो इसमें दोनों क्वेश्चन, यानी नंबर ऑफ टर्म का यूज हो रहा है फॉर्मूला में और सम का भी फॉर्मूला यूज हो रहा है। क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
Next question number 7. Question number 7. Find the sum of first 22 term of the AP. Find the sum of 22 term find the sum of the first 22 terms of an AP जिसका in which D is equal to 7 and common difference 7 and 22nd term is 149 and 22nd second term is equal to 149. आपको फाइंड करना सम ऑफ 22 टर्म, तो आप इसमें किस फॉर्मूला का यूज करोगे? 22nd टर्म का यूज करोगे, यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 22nd टर्म का वैल्यू 149, ए फाइंड करना है, एन नंबर ऑफ टर्म 22 टर्म और कॉमन डिफरेंस इज 7, इससे क्या फाइंड हो जाएगा? फर्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा। अभी तक फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए नहीं दिया था। नाउ फाइंड ए मींस फर्स्ट टर्म, तो 149 is equal to a plus 22 minus 1 21 और 21 into 7 147, तो यानी a is equal to 149 minus 147, a is equal to 2, यानी फर्स्ट टर्म हम निकाल देंगे। a is equal to क्या आया? 2 आया। अब आपको फाइंड करना है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म। यहां पर सम का फंडा लगा दो। सेकेंड पार्ट में सम ऑफ 22 टर्म एस n is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। प्रक्रिया का है, निलय कर देते हैं।